افغان عبوری حکومت آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی بڑھی۔ دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ ہمسایہ ملک کو اس حوالے سے تمام تر معلومات فراہم کی۔ امید تھی کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف سخت ایکشن ہوگا، کارروائی کے بجائے سہولت کاری کی گئی۔ ایسے حالات میں پاکستان نے اپنے داخلی حالات خود ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ لاکھوں افغان مہاجرین کی دہائیوں تک میزبانی کی۔ پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں بڑا ہاتھ غیر قانونی تارکین وطن کا ہے۔ افغان عبوری حکومت افغانستان میں مقیم افراد کو پاکستان کے حوالے کرے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی پریس کانفرنس۔ ایک تو جی جو تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے، پاکستان کے اوپر کسی قسم کا کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ یہ ایک اپنے ذہنوں سے نکال لیں کہ پاکستان پہ امریکہ یا کوئی اور ملک دباؤ ڈال سکتا ہے۔ کیوں دباؤ ڈالے گا اور کیسے ڈالے گا، کیا کرے گا؟ پاکستان کے خلاف کوئی ملک اعلان جنگ کرنے جا رہا ہے؟ پاکستان نہ کسی کا دباؤ لیتا ہے، نہ پاکستان کسی کا دباؤ لے گا۔ تارکین وطن کے معاملے پر بیرونی دباؤ یکسر مسترد۔ پاکستان کسی کے دباؤ میں آتا ہے نہ ہی آئے گا۔ ہم پر تارکین وطن کے حوالے سے امریکہ سمیت کسی ملک کا کوئی دباؤ نہیں۔ ذہن سے نکال دیں پاکستان پر کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے۔ نگران وزیر اعظم کا دو ٹوک اعلان۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ افغان حکومت نے الزام تراشی کر کے پاکستان کے عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ ہمسایہ ملک کی حکومت کا رویہ معنی خیز ہے۔ افغانستان کو ٹی ٹی پی یا پاکستان میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ غیر قانونی تارکین وطن کا انخلا، وطن کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ 7 نومبر کو 5085 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ واپس جانے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ اب تک 2,03,639 غیر قانونی مقیم افراد وطن واپس جا چکے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سیاسی منظر نامے پر متحرک۔ وفد کے ہمراہ گورنر ہاؤس لاہور آمد۔ قائد نون لیگ سے عبدالرحمان کانجو اور اویس لغاری کی ملاقات۔ جنوبی پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم پر مشاورت۔ عبدالرحمان کانجو سے لودھراں اور بہاولپور کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان بھی ملاقات میں موجود۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ہر صوبے کے اندر یکساں ترقی کے مواقع لوگوں کو پیدا کر کے دیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو، 75 سال آزاد ہوئے ہوئے آج بھی لوگ روٹی سے معذور ہے۔ کہیں اس لیے تو پاکستان بھی ہم نے بنایا تھا۔ شہباز صاحب نے اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی کے زمانے میں بھی مہنگائی کو بھی روکنا کوئی اتنا آسان تھا کہ آپ کے آتے ساتھی کو اس کو ٹکا لگا دیں گے، وہ روک دیں گے؟ ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ سارے اپنے معاملات کو درست نہ کریں۔ ایم کیو ایم سے اشتراک ملک و قوم کو مسائل سے نکالنے کے لیے مثبت پیش رفت ہے۔ ہمیں صرف پاکستان کی ترقی چاہیے، ہر علاقے کی ترقی ہماری ترجیح رہی ہے۔ لواری ٹنل ہو یا ہزارہ موٹر وے، ہم نے ہی پاکستان کو یہ منصوبے دیے۔ کبھی امتیاز برتا نہ برتیں گے۔ قوم کی حالت دیکھ کر دل دکھی ہو جاتا ہے۔ شہباز شریف کو ایسے وقت میں ذمہ داری ملی جب ملک عملی طور پر دیوالیہ ہو چکا تھا۔ اب معاشی ترقی کے لیے ڈبل سپیڈ سے کام کرنا ہوگا۔ نواز شریف کے ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ کراچی کے فلاحی منصوبے نواز شریف کے دل کے ہمیشہ قریب رہے ہیں۔ مستقبل میں ایم کیو ایم کے تعاون اور اشتراک سے کراچی اور سندھ کے عوام کی بھرپور خدمت کریں گے۔ شہباز شریف۔ سندھ کے عوام کے لیے اور کراچی کے عوام کے لیے خصوصی طور پر آپ کا، میں اس کو لفظ احسان تو نہیں کہوں گا، یہ کہوں گا کہ آپ کی محبت اور آپ کا جو عوام، کراچی کے عوام کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے کہ ان کی حالت بدلنی چاہیے۔ سب سے بڑا کماؤ شہر ہے پاکستان کا، اور آپ نے جو وہاں پر امن قائم کیا، یہ یقین کریں کہ 2018 کے الیکشن میں جب ہلکے سے میں جب گیا لڑا تو اس کی گونج ہر گلی اور محلے میں آتی تھی کہ نواز شریف کے دور میں کراچی کا امن قائم ہو۔ یقین کرنے میں
नून लीग और एमक्यूएम के वफूद की मुलाकात में क्या हुआ? दुनिया न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। एमक्यूएम ने मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दे दी। मुत्तहिदा की जानिब से मरियम नवाज की कैंपेन चलाने की पेशकश। नून लीग ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। एमक्यूएम रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को दौरा सिंध के दौरान अपने हेडक्वार्टर आने की दावत दी, जो नून लीगी कायद ने कबूल कर ली। मुल्क में सियासी कशीदगी के खात्मे और दीगर जमातों के साथ रवादारी को फरोग देने पर भी इत्तफाक। नवाज शरीफ की जानिब से सिंध के नायब सदर बशीर मेमन को एमक्यूएम की क़यादत से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत। दोस्तों और दुश्मनों को पैगाम देना चाहता हूँ, उनकी अपनी सियासत और हम अपनी सियासत करेंगे। मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों, हम वेलकम करेंगे। चेयरमैन पीटीआई को इसलिए नहीं हटाया कि हमें पावर की ज़रूरत है, हमें आवाम के हुकूक और मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। पीटीआई की हुकूमत ने अपने दौर में कोई काम नहीं किया, हमने हमेशा आवाम की खिदमत की। समंदर के पानी को साफ करके लोगों को फराहम करेंगे। आसिफ जरदारी का घोटकी में खिताब। चेयरमैन पीटीआई की फोन पर बेटों के साथ बात न कराने पर तौहीन अदालत का मामला। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की बात कराने से माजरत, जवाब अदालत में जमा। 18 अक्टूबर को खुसूसी इक़दामात करके चेयरमैन पीटीआई के बच्चों से बात कराई गई। जवाब का मतन, व्हाट्सएप पर बैरून मुल्क मुस्तकिल बात करने की सहूलत मौजूद नहीं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का मौक़िफ़। मईशत में बेहतरी, स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 640 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 54,374 पर ट्रेड। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 85 पैसे महंगी, 287 रुपये 25 पैसे पर फरोख्त। IMF के साथ आज 3 मीटिंग शेड्यूल। FBR और वजारत खजाना के हुकाम वफ्द को ब्रीफिंग देंगे। FBR बैंकों नादरा के दरमियान सार्फिन डेटा शेयरिंग और रेवेन्यू इकदामात के हवाले से किए गए इकदामात से मिशन को आगाह करेगा। बैंकों से मौसूल सार्फिन की डेटा शेयरिंग रिपोर्ट IMF को जनवरी में भेजी जाएगी। स्टेट बैंक सार्फिन की मालूमात की रिपोर्ट फराहम करेगा। FBR मिशन को टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफे की रिपोर्ट भी फराहम करेगा। लाहौर की फ़ज़ा आलूदा तरीन। सूबाई दारुल हुकूमत का फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में पहला नंबर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 तक पहुँच गया। आमिर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 521, कैंट 523, मॉल रोड का 455 रिकॉर्ड। बदतरीन आलूदगी से शहरी बीमारियों का शिकार, तिब्बी माहिरीन का मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। माहौलियाती एमरजेंसी के तहत दफा 144 नाफिज। मौत की सूरत हाल पर पंजाब हुकूमत का जुमे और हफ्ते के रोज छुट्टी का ऐलान। लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला, हफ्जाबाद और नारोवाल में इत्तलाक होगा। 9 नवंबर की पहले ही छुट्टी है। लगातार 4 दिन तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। मार्केटें हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। जुमे के रोज मार्केटें बंद या खुली रखने का फैसला ताजिर खुद करेंगे। बेकरीज और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। लोगों से अपील है कि घरों पर रहें, बाहर निकलते वक्त मास्क पहने। शहरियों की सेहत हर चीज से ज्यादा अजीज है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हम 10 नवंबर को भी पूरे पंजाब में दफातर की और स्कूलों की छुट्टी हम आज नोटिफाई कर देंगे। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है। जहाँ पे स्कूल में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती वहाँ पे हम सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। दफातर ज़्यादातर सैटरडे को बंद हैं। माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। ये सिर्फ लाहौर डिवीज़न के लिए है, प्लस गुजरांवाला है और वज़ीराबाद। मोग में कमी की उम्मीद। आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की नवीद। मगरबी हवाओं का सिलसिला रात को बालाई इलाकों में दाखिल होगा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का इम्कान। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी है। गजा में अस्पतालों पर हमले। नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर बम बरसा दिए।
अलकुद्स और कमाल उद्वान अस्पताल के नजदीक भी बमबारी, बच्चों के अरन-तीसी अस्पताल को भी खाली करने की धमकी। मुत्तहिदा अरब अमारात का गजा में 150 बिस्तरों का फील्ड अस्पताल कायम करने का ऐलान। सिहोनी फोर्सेस की रफा और खान यूनिस के करीब बमबारी, 23 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा के लोगों को जुनूब की तरफ हिजरत करने की धमकी। फजाई हमलों के साथ साथ जमीनी कार्रवाइयां तेज कर रहे हैं, तर्जुमान इसराइली फौज का ऐलान। गजा में इसराइल की जारहियत ना रुक सकी, मज़ीद 306 फ़लस्तीनी शहीद, 78 ख़वातीन और 139 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 से बढ़ गई। शहदा में 4,880 बच्चे और 2700 से ज़ायद ख़वातीन शामिल, 32,000 से ज़ायद ज़ख्मी। 15 लाख शहरी बेघर हो चुके। इसराइल को तिब्बी मराकज़ और एम्बुलेंसेज के साथ अस्पतालों पर बमबारी से रोका जाए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस सोसाइटी से मुतालबा। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बगैर गजा में जंगबंदी नहीं होगी। नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार। एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइली फौज गजा के कल्ब में दाखिल हो चुकी, हमलों में मजीद शिद्दत लाएंगे। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं कि यरगमालियों की वापसी के बगैर इंसानी बुनियादों पर कोई जंगबंदी नहीं हो सकती। अब इसराइल हमास को गजा में हुकूमत करने की इजाज़त नहीं देगा। जंग के बाद गजा में इसराइल या हमास की हुकूमत नहीं होगी। अमेरिका की गजा पर इसराइल से ज़्यादा देर तक काबिज रहने के खिलाफ इसराइल के दोस्त हैं, जंग बंदी पर उनके मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करते, फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी की हिमायत नहीं करेंगे। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी जॉन कर्बी की गुफ्तगू। वाशिंगटन के पास फ़लस्तीनियों को नई जगह पर आबाद करने का मंसूबा मौजूद नहीं, इस मामले पर इसराइल के साथ नहीं है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा वेदांत पटेल की न्यूज़ ब्रीफिंग। कि जो साल है उसमें जितना किया जाए कम है। आप मुतमैन हैं? आप भी नहीं है मुतमैन। 1.5 अरब मुसलमान नहीं है मुतमैन, तो मैं और मेरी हुकूमत कैसे मुतमैन होंगे? बच्चे शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन शहीद हो रही हैं, अस्पताल पे हमले हो रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता कि कई सदियों में इस तरह का जुल्म जो है ना किसी ताकत ने, किसी रियासत ने किसी के ख़िलाफ़ किया। गजा में बच्चों और ख़वातीन को शहीद किया जा रहा है, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं। तारीख में कभी इस तरह के मुजालिम किसी पर नहीं हुए। गजा के लिए जितनी भी मदद की जाए कम है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। निगरान वज़ीर ख़ारिजा का फ़लस्तीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों से यकजहती का इज़हार। जलील बाजिलानी ने कहा कि इसराइल की वहशियाना बर्बरियत में फ़लस्तीनी तनहा नहीं है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों से मुकम्मल इज़हार यकजहती करता है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा का हिमायत और इमदाद भिजवाने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। तुर्की की पार्लियामेंट का इसराइली मसनूआत के बायकॉट का ऐलान। गजा पर खूनी जारहियत के खिलाफ एहतजाजन इसराइली मसनूआत का इस्तेमाल छोड़ने का फैसला। तुर्क पार्लियामेंट में रेस्टोरेंट से इसराइली मसनूआत को हटा दिया गया। तुर्की की पार्लियामेंट की जानिब से फैसला अवामी राय के बाद किया गया। कराची के बच्चों की फ़लस्तीनियों के हक में रैली, भरपूर यकजहती का इज़हार। इसराइली जारहियत का शिकार मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने का आज़म। गजा के बच्चों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। अमरीका इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहा है। हाफिज नईमुर रहमान। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज नीदरलैंड्स और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। नीदरलैंड्स ने इवेंट में 7 मैचेस खेलकर 2 में कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड ने 7 मैचेस खेलकर सिर्फ 1 मैच में फतह समेटी। निगरान
पाकिस्तान वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान चले गए। इक़्तिसादी ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अनवारुल हक काकड़ 11 नवंबर को सऊदी अरब रवाना होंगे। 12 नवंबर को OIC के हंगामी सरबराही इजलास में शरीक होंगे। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे।